the merciful. Allah's name, who knows the secret of heart, mind, and soul. As I told earlier, prior to understand Aristotle or his book, The Poetic, we must understand about Plato and Socrates. Basically, it is a term which is denoted as SPA. Please write it down. SPA. Socrates, Plato, and Aristotle. They are interlinked with each other. Their philosophy is interlinked and compared. When you are able to understand Socrates, you will understand Plato because he was a student of Socrates. And when you are able to understand Plato, you will be able to understand, comprehend what Aristotle's philosophy. So Aristotle basically he is giving reaction against the Republic. Republic is one of the book which was written by Plato. Plato basically he was a wrestler, he was a scholar, he was a philosopher, and he gave many theories, and still their established theories still they are existed and we are following. You can't be acquired philosophical degrees or like that until unless you get command over Plato's and like these philosophers. So first of all, we shall discuss about Socrates. Socrates was a teacher, or you could say scholar, and he was a philosopher. In fact, he gives epistemology. He was interested in epistemology. What is epistemology? Prior to understand, you could say Socrates, we should discuss what is epistemology. According to Socrates, if you want to know reality, if you want to know something about yourself, you first of all learn what is epistemology. Epistemology means that the rational and justification of your knowledge. For example, you've got a knowledge about something, but you are not understanding from what source is coming and what is the foundation of this one. So this is what called epistemology. In epistemology, you will learn the source of knowledge. Basically, it's meaning just like knowledge, but knowledge from what source you are getting. So Socrates say to his contemporary people, mean to say that he is visiting to various places. He going to different tribes and different peoples, going place to place, and he's delivering sermon. He's going to different peoples. He's saying that you should understand yourself. So the way to understand, you should question yourself. For example, in Greek, Athenian Greek and such kind of places, there was a belief, the god and goddesses, they are on the earth, they are getting married, they are doing sin, they are doing sex, and they are involved in sexual and like these activity. He says when god and goddesses, they are involved in such kind of crimes, such kind of guilts, how can they refine human being? So for that, you should self-analysis. You should talk to yourself. You should question. So how you are going to get question? Through epistemology. You will learn the source of knowledge, where you are getting this, whether it is authentic or not. So that was the person who gave, you could say, foundation to epistemology and philosophy. He is also known as the father of philosophy. तो इन्होंने पहली दफ़ा लोगों को सोचने पे मजबूर किया. उसने कहा उसका जो मेन कोट है सोक्रेटिस का जो मेन कोट है वो ये है कि वो कहते हैं कि ओनली थिंग आई नो नथिंग, कि जो मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता. कि सबसे पहले अगर किसी चीज़ को आपने समझना है, जो आपका पहला नॉलेज है, उसको आप सबसे पहले ये कहें कि आप मैं कुछ नहीं जानता, और देन यू डू एनालिसिस वट एवर आई एम बिलीविंग वेदर इट्स राइट और रॉन्ग. सो यू विल, how would you know? You will know the source of knowledge, whether the source of knowledge, whatever I am acquiring and getting, whether it is authenticable or not, whether it is authentic or not. अगर तो authentic है तो फिर उसको फॉलो करो, अगर authentic नहीं है तो उसको फॉलो ना करो. तो इस तरह ये सोक्रेट ने हमें ये मेथड बताया था. सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं. सोक्रेट की हमारे पास कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है. वी डोंट हैव
Socrates' book, mean to say he delivered sermon and lecture and dialogues and whatever we got through his student and pupils. His students and pupil, they just give us in the form of written whatever he delivered to them and whatever he talked to them, and we are not getting, you could say, we're not having any authentic book related to Socrates and like these, you could say, philosopher. But we do have books of, you could say, Plato and Aristotle. They wrote their book, and we are still following their books. Some of the parts, you could say, their lectures, still they are, you could say, inquiry of the scholars. They are finding, they are getting meaning. But the thing is that we lost lot of things, like if you talk about the catharsis, the term which was coined by Aristotle, we couldn't get the proper, you could say, definition. The books they written for other, you could say, medical and for other purpose, we are just getting idea from them. Now we are going to discuss about the Socrates. What happened? He was talking to the people here and there, going here and there, inviting people toward truth. He's saying to the people, you should invite other people, you should talk to other people, you should just discuss what are the source of your knowledge. Whether you are talking to the gods, the god and goddesses, they are in the Athens, Greece, or somewhere else, whether they are the truth or not. So to know this, you have to question, you have to just interact, you have to self-analysis. Once you do self-analysis, you would be able to learn, you would be able to acquire knowledge. So that was the, you could say, a big problem. And the people belong to Athens, Greece, they all collected together, they were in a tribe, they just they started inviting people to have a trial. So what happened, the people collected together, और उन लोगों ने एक प्रोपोगंडा सोक्रेट के खिलाफ शुरू किया, और सोक्रेट को उन्होंने एक 500 people almost they collected together, and what happened, almost 500 people collected together, और उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट दिया. लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट दिया कि he is instigating and he is inviting people towards just like revolt and like that. यानी जो उस वक़्त की किंगडम है उसके ख़िलाफ़ ये क्या बगावत कर रही हैं. तो सारे लोग कलेक्ट हो गए. उन लोगों ने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, whether you have to drink this hemlock water, that was a poisonous kind of water he has to drink if he mean to say, because he found guilty. तो एक तो है आपके पास ऑप्शन कि आप इस हेमलॉक को पिएं. The other thing that you would be banished from this country. And upon this, Socrates said that all throughout the life I taught people that you should do analysis. I say that I don't know death, and I'm teaching to the people that what is death. I didn't tell them that the death is something like this or that. I used to say people that death is nothing or like that. And no, if I'm afraid of death, if I just escape from death, it means that I'm afraid of death, and whatever I taught and whatever philosophy I taught, that will be vanished, that will be finished. So the thing is that I have to defend this. And he took this hemlock and he drank it, and he was died. After this, Plato was very worried because he lost his grand masters. He started doing his work, his research, even he left this place. And after some time, he came back. And he set up his own academy. And he continued the work of Socrates as well, and he wrote many books as well. Plato established Athens Academy, where the people from Europe and the Athens, Greece, different tribes, they are coming and they are getting education. And he wrote Republic book. And in this Republic, you could say he is talking about the ideal land. Basically, Plato idealized certain, you could say, state. In his mind, that whatever you have, that is in the form of idea. Plato कहते हैं कि जो कुछ दुनिया के अंदर है वो एक आइडियलिज्म है, जो कुछ रियल है वो आइडियाज़ हैं, जो कुछ आपके सामने है ये सब कॉपी है.
प्लेटो क्या कहते हैं कि जो कुछ आपके सामने है ये जस्ट एक कॉपी है, और जो रियल चीज़ है वो इंसान के माइंड में है। इवन वो कहते हैं कि ये अगर गॉड ने ये चीज़ बनाई है, ये दुनिया बनाई है, तो रियल वर्ल्ड कहाँ पे है? गॉड के माइंड में है। तो ये जो आपके सामने मौजूद है ये जस्ट क्या है कि उसने अपनी कॉपी बनाई है। तो क्या अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि जो कुछ हमारे सामने है ये क्या है? कॉपी ऑफ कॉपी है। कि अगर हम इससे कोई चीज़ बनाते हैं नई चीज़, तो वो ट्वाइस अवे फ्रॉम रियलिटी है। कि असल चीज़ तो हमारे माइंड में है, जो पहले मौजूद है वो कॉपी है, तो इसके आगे जो है हम बना रहे हैं, तो ट्वाइस अवे फ्रॉम द रियलिटी। एंड और कहता है कि पोएट जो हैं वो सबसे बड़ी सुपरफिशियल बातें करते हैं, और पोएट्स को वो अपनी स्टेट में, जो उसने एक रिपब्लिक अपनी स्टेट बनाई थी, उसके अंदर से वो वैसे ही उसको बैनिश करता है पोएट और पोइट्री को। कहता है कि पोइट्री जो है ये मदर ऑफ इवल है, ये मदर ऑफ लाई है, इसके अंदर झूठ के सिवा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो रियल में है और वो आइडियाज़ की शक्ल में। एंड ही लाइक आइडलिज्म, वो आइडियलिज्म को पसंद करता है, और वो कहता है कि जो इंसान के आइडियाज़ में है, माइंड में है, वो असल चीज़ है। अगर गॉड ने इस दुनिया को बनाया है तो ये असल जो वर्ड है वो बेसिकली इट इज़ लाइंग इन द माइंड ऑफ द गॉड। तो जो कुछ रियलिटी है, जो असल है, जो असल चीज़ है, वो इंसानों के माइंड में है, और जो कुछ वो उतारते हैं वो जस्ट कॉपी होता है, चाहे वो कागज़ पे उतारें या वो किसी चीज़ पे लिखें और क्रिएट और डू समथिंग वट एवर। अगर पेंटर कोई पेंटिंग करता है तो असल पेंटिंग उसके माइंड में है। अगर कोई बढ़ई जो है वो कोई चेयर बनाता है या कोई फर्नीचर बनाता है तो असल चीज़ उसके माइंड में है। कोई भी चीज़ यहाँ पे दुनिया में है दैट इज़ जस्ट कॉपी ऑफ कॉपी, और वी आर जस्ट इमिटेटिंग। हम आर्ट के ज़रिए जो भी है, फ़न के ज़रिए हम जो भी बनाते हैं, इट्स जस्ट कॉपी। सो नथिंग इज रियल ओवर हियर। तो इस तरह प्लेटो ने हमें कंसेप्ट दिया कि अगर आप रियलिटी को जानना चाहते हो, अगर कोई किंग करना चाहता है, हुकूमत करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले फ़िलासफ़ी को सीखना पड़ेगा। फ़िलोसॉफिकल नॉलेज कैसे सीखेगा कि वो उस लेवल पे आए? वो डेमोक्रेसी को भी नहीं मानता। वो कहता है कि डेमोक्रेसी जो है वो टोटली अवे है रियलिटी से। डेमोक्रेसी के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि जो बेसिकली वोट दे रहे होते हैं उन्हें खुद कुछ नहीं पता, और जो वोट उनके लेने वाले जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, अगर आप उनको फ़िलासफ़ी नहीं सिखाते, उनको फ़िलोसॉफिकल नॉलेज नहीं है, उनको आइडियलिज्म का नॉलेज नहीं है, उनके आइडियाज़ का नॉलेज नहीं है, तो दे कैन नेवर एवर बी गुड किंग। गुड किंग बनने के लिए आपको फिलोसॉफिकल नॉलेज को सीखना पड़ेगा, ट्रू फिलॉसफी को समझना पड़ेगा, आइडियलिज्म को जानना पड़ेगा, जो उसकी आइडियलिज्म है उसको जानना पड़ेगा, कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो अगर देखा जाए तो किसी हद तक अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ग्रेट एक्सटेंट तक ऐसे लगता है कि प्लेटो बिल्कुल राइट कहता है। लेकिन प्लेटो कुछ ऐसी चीज़ें कहता है क्योंकि वो किसी भी मज़हब को नहीं मानते थे। अगर आप रोमन ग्रीस को देखें तो दे वर नॉट फॉलोअर ऑफ यू कुड से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, बिकॉज इस्लाम वॉज नॉट ओवर देयर, क्रिश्चियनिटी वॉज नॉट ओवर देयर। वो क्रिश्चियन भी नहीं थे, वो मुस्लिम भी नहीं थे। उनके लिए गॉड और गॉडेसेस का कंसेप्ट क्या था कि जो यानी मिथोलॉजीज को मानते थे। आपको पता होगा मिथ जो होता है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, कि उस वक्त कम्युनिकेशन का गैप था, कि मुझे कोई स्टोरी मिली या मुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ, कहीं मैंने एंजल देखा है तो मैंने बताया कि एंजल, वहाँ मैंने एक उड़ता हुआ एंजल देखा है, उसका सर जो था वो और तरह का था, उसका धड़ जो था वो जानवर जैसा था। सो दीज आर एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिथोलॉजीज, वट एवर ओवर देयर दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ मिथोलॉजीज। तो हमारे पास जो कुछ था वो मिथ की शक्ल में था, और यानी रोमन ग्रीस के टाइम पर तो उस वक़्त कोई चीज़ रियलिटी में आपको, यानी आजकल की जो प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल वर्ल्ड है वैसा नहीं था। गॉड और गॉडेसेस का कंसेप्ट था कि बहुत सारे गॉड होते हैं। वेजिटेशन का गॉड अलहदा से है, ठीक है, उनका सिन का गॉड अलहदा से है, उनका अच्छाई का गॉड अलहदा से है, तो अगर उनका सफ़र का गॉड अलहदा से है, और उनकी जो क्रॉप्स हैं उनका गॉड्स अलहदा से है। गॉड और गॉडेसेस का कंसेप्ट था इवन कि दे आर लिविंग ऑन द अर्थ, दे आर मैरिंग टुगेदर, दे आर इवन गिविंग बर्थ टू द किड्स एंड चिल्ड्रंस। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग ओवर देयर इन रोमन ग्रीस। तो इस तरह के कंसेप्ट थे, और इसी वजह से सोक्रेट ने इसी चीज़ को चैलेंज किया था, ट्रायल हुआ, ही गॉट डेथ। प्लेटो वही चीज़ें टीच कर रहा है और आइडियलिज्म की तरफ जा रहा है कि ये दुनिया रियलिटी की है ही नहीं, जिसमें हम रियल फाइंड कर रहे हैं दैट इज़ नॉट ओवर हियर।
चीज़ आइडियाज़ के अंदर है। अगर आप अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करते हो, आप अपने आइडियाज़ को बेहतर करते हो, यू वुड बी फिलासफर, यू वुड बी गुड लीडर, यू वुड बी गुड किंग। और ये किंग जो है या डेमोक्रेसी है, ही इज़ टोटली रिजेक्टिंग इट बिकॉज इट इज़ जस्ट फॉल्स एंड द पीपल दे डोंट हैव नॉलेज। उसके लिए इसने अपनी केव थ्योरी दी थी। यानी एक केव है, उसके अंदर बहुत केव के अंदर लोग बंद हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसकी केव थ्योरी को समझें, प्लेटो की। उसने कहा जी आप ये दुनिया जो है ना, बेसिकली ये केव है, केव के अंदर लोग बंद हैं। उस केव के अंदर क्या है, बेसिकली उस केव के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं और काफ़ी सालों से बंद हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि ऊपर उन्हें कुछ लोगों की जैसे वो परछाइयाँ नज़र आती हैं, ऊपर उनको साया नज़र आता है, बट दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग दिस केव। और एक आदमी जो उनमें से एक बाहर निकल आता है, बाहर निकल के वो ऊपर छत पे आ जाता है, मीन्स केव से बाहर निकल के ऊपर देखता है तो उसे ऊपर रोशनी नज़र आती है। वो ऊपर सूरज को देखता है, आसमान को देखता है, और जो कहता है कि अंदर बंद है, उनको जस्ट परछाइयाँ जो सूरज की वजह से पड़ रही हैं अंदर केव के अंदर, वो उनको रियलिटी समझे हुए हैं। इफ़ यू वांट टू understand this word, if you want to understand reality or idealism, a new idea, you could say productive ideas, you have to come out from this cave and just stand like a person who is observing sun, moon and the stars and the day night. आपको फिर उस इंसान की तरह उससे बाहर आना पड़ेगा। ये केव थ्योरी उसने दी थी। केव थ्योरी के अंदर उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर आप फिलासफर बनना चाहती हो, अगर आप कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहती हो, तो आप इस केव से बाहर निकलो, बाहर निकल के दुनिया को ऑब्जर्व करो कि डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है, ये इसके अंदर चेंजिंग कैसे होती है। वही अपने उस्ताद का, सोक्रेट का जो मेथड है, वही वो बेसिकली अप्लाई कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन सराउंडिंग अस, कि असल रियलिटी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, यानी नॉलेज। फिर उस नॉलेज का सोर्स कहाँ से, वेदर ट्रू और रॉन्ग, यानी जो आपके पास सोर्स है वो रॉन्ग है या वो ट्रू है, वो बेस्ड ऑन रियलिटी है या बेस्ड ऑन जस्ट फिक्शन और जस्ट सुपरस्टिशियस है। तो सुपरस्टिशियस चीज़ों को बेसिकली रिजेक्ट कर रहे हैं। फिलासफर जो होता है बेसिकली उसका मानी भी ये होता है कि लवर ऑफ विजडम। फिलासफर इज़ बेसिकली लवर ऑफ विजडम। तो वो विजडम को लाइक करता है, कहता है कि डेमोक्रेसी लाओ, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहले रिफाइन करो, वो आइडियलिज्म लाओ, वो आइडियाज़ लाओ, फिर वो वर्ड आइडियल स्टेट क्रिएट होगी जो वो चाहता है, जो प्लेटो चाहता था। अब इसके बाद आ जाते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो हैं ईथन ग्रीस में, ये जी आप 384 BC और 322 यानी 322 इनकी डेथ हुई है BC में। अरिस्टोटल स्टैब्लिश्ड हिज ओन अकेडमी, लाइसियम स्कूल इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया। ये स्टूडेंट थे प्लेटो के, और बेसिकली क्योंकि ये प्लेटो के बाद आ रहे हैं तो इनके पास नॉलेज सोक्रेट्स का भी है, और उसके बाद इसका जो अपना टीचर है प्लेटो उसका भी है। तो इसने दोनों तरह की मिनट से नॉलेज को एक्वायर किया है। इसने प्लेटो से भी बहुत कुछ सीखा है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हैं, तो जिनके बारे में है कि उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी, उनके ये उस्ताद भी हैं, उनको इन्होंने टीच किया है। और इनकी अगर आप मिनट से जो पोइटिक इन्होंने बुक लिखी है, ये बेसिकली ये रिएक्शन था, इट वाज जस्ट रिएक्शन ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक में ये कहा गया कि आपको अपने ना तो शादी करने की ज़रूरत है, हम सिर्फ उन बच्चों को ही अपना बच्चा समझते हैं जिनको आप पैदा करते हैं। तो प्लेटो कहता था कि सारे जो लोग, क्योंकि वो मज़हब को किसी को भी नहीं मानते, वो कहता है जी बच्चे भी एक ही हों, सारों के बच्चे हों, सारे उसकी देखभाल करें बच्चों की भी, और शादी भी का कंसेप्ट भी नहीं होना चाहिए, सारे लोग यानी है कोई मलकियत को कहता है जी निकाल